In this lesson, we'll discuss about Finance Commission of India. Now, this is a very important topic for RBI Grade B and for other competitive examination. For UPSC also, this is very important. So, let's understand Finance Commission of India. We will discuss here both the economic aspect of Finance Commission as well as the political aspect of Finance Commission. कि Constitution of India में कौन कौन से articles हैं जिसके बारे में जिसमें Finance Commission के बारे में लिखा गया है, कहाँ से इसे powers मिलती है, and what are the qualifications to get into this Finance Commission, right? So let's discuss about Finance Commission of India. Now, what all topics are we going to study over here? One is we'll discuss briefly about the introduction related to Finance Commission of India. Then we will study about the composition of Finance Commission of India कि Finance Commission of India में कौन कौन से members होते हैं, क्या इसका composition होता है, क्या उनकी qualifications होती है. ये समझने के बाद we will discuss about functions of Finance Commission कि Finance Commission जो है उसके क्या क्या functions Constitution में mentioned है, क्या क्या functions उसको President delegate कर सकता है. This we'll study in detail. And Finance Commission के functions discuss करने के बाद we will also study about State Finance Commission. Then we will discuss about 14th Finance Commission of India, that is the recent one. We will discuss about the recommendations that are given by the 14th Finance Commission of India. So recommendations made by 14th Finance Commission of India, and then we'll discuss about finally the implications of 14th Finance Commission. So let's start with the introduction of Finance Commission of India. Now, Finance Commission of India, it came into existence in 1951. ये 1951 में existence में आया. It was established under Article 280. Article 280 of Indian Constitution में Finance Commission के बारे में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि President of India will appoint a Finance Commission, right? So it was established under Article 280 of Indian Constitution by the President of India. By the President of India का मतलब ये है कि President of India appoint करेगा Finance Commission in every 5 years. So it was formed to define the financial relations between center and state. Now see, इंडिया में अगर हम देखें तो फेडरेशन है. फेडरेशन इन द सेंस इंडिया इज़ अ फेडरल पॉलिटी. इंडिया में सेंटर भी है, स्टेट्स भी है. तो सेंटर और स्टेट्स में फिनेंशियल रिलेशंस किस तरह से रहेंगे, किस तरह से फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सारे रिकमेंडेशंस देता है फिनेंस कमीशन. इसके बाद अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 280 एक फिनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 आया था जिसमें कि ये मेंशन था, जिसमें कि ये सारी चीज़ें मेंशन थी. इट स्टेट्स द टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन. टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से हो सकता है मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन का, उनका टर्म कितना होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एंड द पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, कमीशन जो है इट इज़ अपॉइंटेड एवरी 5 years एंड इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एक चेयरमैन है प्लस 4 अदर मेंबर्स हैं. तो अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 में कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें मेंशन्ड है रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, एंड वो आर्टिकल कौन सा है, दैट इज आर्टिकल 280. Now let's understand about composition of Finance Commission. So far we have discussed that what is Finance Commission, and briefly we have discussed that in Article 280 Finance Commission Act 1951 उसमें Finance Commission के बारे में mentioned है. So Article 280 of Constitution it deals with the composition कि उसमें एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे. उसके फंक्शंस क्या होंगे, रोल क्या होगा Finance Commission का. So Constitution provides that Finance Commission shall consist of chairman. ये Constitution Article 280 में mentioned है कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे. दैट विल बी अपॉइंटेड बाय हुम, इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो चेयरमैन और मेंबर्स दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ध्यान रखिएगा, ये चेयरमैन और मेंबर्स जो फाइनेंस कमीशन के होते हैं जिसमें कि एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे, तो ये सारे लोग जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक एक्ट बनाए जिसमें कि क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स और पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन मेंशन होगी. और उसके बाद पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है जिसमें कि क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है. तो ये चीज़ें लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280. अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगी फाइनेंस कमीशन की. तो एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, चेयरमैन शैल हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स.
पहली बात तो चेयरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और फिर 4 मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो चेयरमैन में इट इज़ मेंशन दैट चेयरमैन विल हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड अदर 4 मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, अदर 4 मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड अमंग पर्सन who have qualifications as par with a judge of high court, who has special knowledge of finance and accounts of government, who have vast experience in financial matters and who have special knowledge of economics। तो ये सारे क्राइटेरिया है और ये सारे क्वालिफिकेशन है to be selected as a member of finance commission। To become a chairman of finance commission, one should have vast experience in public affairs। Then what are the criteria for disqualification of finance commission? Now a member or chairman can be disqualified if he is of unsound mind। अगर वो unsound mind का है, if he is undischarged solvent, मतलब अगर वो bankrupt है, if he is convicted of an offense, अगर वो उस पर कोई offense का charge है और वो convict हो गया है उस offense के लिए, और he has such financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as a member of commission। तो उसका कोई conflict of interest है जो कि उसके functions as a member of commission को prejudicially या adversely affect कर सकता है, तो भी वो disqualify हो जाएगा। तो ये these are all the criteria for disqualification for both a member and chairman, right? So we have discussed constitution provisions of finance commission, the act of 1951 we have discussed, then we have discussed the qualifications and the disqualifications of member and the chairman. Now let's discuss about the functions of finance commission. So as far as the functions of finance commission are concerned, first of all remember that it is a quasi judicial body। finance commission जो है वो एक quasi judicial body है, but primarily अगर हम देखें finance commission makes recommendations to the president on following matters। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, finance commission recommendations देता है president को और ये recommendations किसी भी तरह से binding नहीं है। ध्यान रखिएगा, finance commission recommendations are not at all binding, right? Now what are the functions? First function is to distribute central funds between center and states। तो ये president को recommend करता है कि किस basis पर central funds को distribute किया जाए between center and states based on their respective contribution of taxes। अब हो सकता है महाराष्ट्र जो है वो ज़्यादा contribute कर रही है, राजस्थान कम contribute कर रही हो, तो depending on their respective contribution of each state, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि सेंट्रल फंड्स जो आए हैं उसमें से कितना सेंटर और स्टेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ रिलैक्स प्रोविजंस होते हैं। तो प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न ग्रांट्स इन एड टू स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिटरमाइन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में ये चीज़ें मेंशन होती है। एक फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन इस पे भी देता है कि टू रिकमेंड द मेजर्स रिक्वायर्ड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज in the states based on recommendation of state finance commission। See, there is one finance commission at the center and there are state finance commission in each state। Now this state finance commission जो ये आया है, ये 73rd और 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बने हैं। तो एक तो पहली बात ये ध्यान रखेगा कि जो फाइनेंस कमीशन है वो ये भी रिकमेंड करता है कि हाउ टू ऑगमेंट मेजर्स रिक्वायर्ड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट रिसोर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट्स। अब ये जो रिकमेंड करता है, ये जो उस स्टेट का स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये रिकमेंड करता है सेंटर को। और इसके अलावा कोई भी मैटर इफ इट इज़ रेफर्ड टू द फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, वो उस मैटर पर भी फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशंस देनी होगी। तो दीज आर द 4 मेन थिंग्स और 4 मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। Right, now let's discuss about the 14th Finance Commission. So first we'll discuss about the composition of the 14th Finance Commission, then we'll move on to the recommendations of 14th Finance Commission. So if you see 14th Finance Commission, it was constituted by President on 2nd January 2013 to make recommendations for what? For the 5-year period of 2015 to 2020. तो अब जो 15th Finance Commission बनेगा वो recommendation देगा for 2020 to 2025, right?
So it's mainly for 5 years. Now, Dr. Y.V. Reddy, he was appointed as the chairman of Finance Commission. He was former RBI governor as well. Ms. Sushma Nath, Dr. M. Govinda Rao, Dr. Sudipto Mundale, they were appointed full-time members. And Professor Abhijit Sen, he was appointed as a part-time member, and Shri Ajay Narayan Jha, he was appointed as secretary to the commission. So this was the total composition of 14th Finance Commission. So we have discussed that the qualifications of a chairman, the qualifications to become a member, the disqualification criteria, the functions of Finance Commission. Then we have discussed the composition of 14th Finance Commission. He was the chairman. This I have told you that he is former governor of Reserve Bank of India. You can see the experience. He was a member of Planning Commission. He was former Union Finance Secretary, right? He was director National Institute of Public Finance and Policy. So I hope you are now understanding कि जो हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी वो क्वालिफिकेशंस ये यहाँ मीट कर रहे हैं. सुदीप्तो मुंडले, फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एंड ही वाज द सेक्रेटरी to the commission. So this was the composition, 1 chairman and total 4 members. Right, now let's understand the recommendations made by the 14th Finance Commission. So what all recommendations were made by the 14th Finance Commission? So since the 14th Finance Commission, it was headed by Professor Y.V. Reddy. This we have discussed. So major recommendation जो 14th Finance Commission की आई थी, सबसे major recommendation थी कि जो शेयर ऑफ स्टेट्स इन नेट प्रोसीड्स ऑफ शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस जो है, इट विल बी इंक्रीज to 42% against 32% recommended in 13th Finance Commission. That is, अगर हम देखें जो सेंटर शेयर करता है स्टेट से, वो पहले 13th Finance Commission रिकमेंड की थी 32%, बट अब इसने 14th Finance Commission ने 10% हायर कर दी, और ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था. 10% हायर देन द रिकमेंडेशन ऑफ 13th Finance Commission. इससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होगा और एलिमिनेट होगा. तो ये एक सबसे मेजर रिकमेंडेशन थी कि जो शेयर ऑफ स्टेट्स एंड नेट प्रोसीड ऑफ शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू आते हैं जिससे कि वो शेयर से जो स्टेट से भी शेयर करती है, तो जो शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसका अब सेंटर को 42% स्टेट्स को देना चाहिए. ये एक 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी. देन फिस्कल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस टू 3% ऑफ GDP बाय 2017-18. दिस वाज आल्सो अनदर रिकमेंडेशन which is a carbon copy of 13th Finance Commission. So that this recommendation was same in 13th Finance Commission also. Now a target of 62% of GDP for the combined debt of center and state. पहले ये था कि टारगेट 68% था, अब इन्होंने टारगेट 62% कर दिया है. तो दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर हम देखें ये 62% जो है दैट इज़ ऑफ GDP फॉर द कंबाइंड डेट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स. तो ये टारगेट हमने डेट का कम कर दिया है, तो दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर 13th फाइनेंस कमीशन विच टारगेटेड 68% ऑफ GDP फॉर द कंबाइंड डेट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स. मीडियम टर्म फिस्कल प्लान 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इट शुड बी रिफॉर्म्ड और एंड मेड द स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट रादर देन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. तो उन्होंने कहा कि कमिटमेंट आना चाहिए रादर देन ओनली इंटेंट, कि आप इंटेंशन शो कर रहे हो. इट शुड बी मेड द स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट दैट यू आर कमिटेड टू मीट द टारगेट्स मेंशन्ड इन मीडियम टर्म फिस्कल प्लान. देन FRBM एक्ट 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इट नीड्स टू बी अमेंडेड टू मेंशन द नेचर ऑफ शॉक्स विच शैल रिक्वायर टारगेट्स रिलैक्सेशन. इसका मतलब अगर हम देखें कि FRBM एक्ट जो था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ना इसमें ये मेंशन था कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल ज़ीरो करना है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% तक लेके आना है या उससे कम रखना है. तो और ये इसकी डेडलाइन भी मेंशन थी. बट FRBM एक्ट को 14th फाइनेंस कमीशन अमेंड करने के लिए कह रहा है. वो बोल रहा है कि FRBM एक्ट शुड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ शॉक्स. किन शॉक्स में हमें इस टारगेट को रिलैक्स करना है. अगर हम 3% टारगेट रख रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी एक्सटर्नल इकोनॉमी या एक्सटर्नल क्राइसिस हो, जैसे कि हम देखें जो लेमन ब्रदर्स का फॉल हुआ था एंड देन आफ्टर दैट देवर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. सो सच थिंग्स शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट कि हमें जो FRBM एक्ट है उसको किन किन शॉक्स में कितना रिलैक्स करना चाहिए. तो इसलिए FRBM एक्ट को अमेंड करना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन के बाद एक एनके सिंह कमेटी बनाई। इस एनके सिंह कमेटी का मेन एजेंडा यही था कि किस तरह से हमें एफआरबीएम एक्ट को अमेंड करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट शुड कंक्लूड ग्रैंड बार्गेन टू इम्प्लीमेंट द मॉडल जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट, इन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंटर और स्टेट्स को दोनों को कंसेंसस जनरेट करना चाहिए टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी एक्ट। और जीएसटी तो 1 जुलाई से वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो दिस थिंग हैज़ बीन कंसेंसस इस पे ऑलरेडी जीएसटी पर हो चुका है। इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू रिस्टोर प्रिडोमिनेंस ऑफ फॉर्मूला बेस्ड प्लान टारगेट्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इतनी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इतना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स थी, तो 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इन स्कीम्स को कम करके आप लिमिटेड स्कीम्स रखो बट उनको एफिशिएंटली टारगेट करो और फॉर्मूला बेस्ड प्लान ग्रांट्स दो, कि एक प्रॉपर फॉर्मूला हो जिसके बेसिस पे आप ग्रांट्स दें। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को अब गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक रीस्ट्रक्चर कर दिया है 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अब काफ़ी कम और रीस्ट्रक्चर हो गई है। दिस वाज ओनली आफ्टर द 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। इसके बाद रिकमेंडेशन 14 फाइनेंस कमीशन ने दी कि स्टेट्स नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉसेज इन पावर सेक्टर इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो आप जानते होंगे एक उदय स्कीम आई थी, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। दिस वाज आल्सो इन सिंक विद द 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, क्योंकि उदय स्कीम में यही मेंशन था कि जो लॉसेज हैं पावर सेक्टर, जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो लॉसेज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लेगी। 75% लॉसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से उसको बेयर करेगी। तो स्टेट्स नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉसेज इन पावर सेक्टर इन टाइम बाउंड मैनर। दिस वॉज मेनली implemented through the Uday scheme launched by Ministry of Power. Owing to this increase in states' share, it was envisaged that increase in their shares to be utilized in accumulating capital asset. अब हमने देखा कि 32% से अब स्टेट्स का शेयर कितना हो गया 42%। तो 14 फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि now it is envisaged that the increase in the shares of states should be utilized in accumulating capital assets. तो वो capital assets को उससे accumulate करेंगे। 14 Finance Commission has also proposed a new horizontal formula. Now this is very important. अब उन्होंने इस तरह का horizontal devolution formula बताया है। तो ये अगर हम देखें तो 13 Finance Commission में है, ये 14 Finance Commission में है। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर टू स्टेट्स, इसमें कितना हुआ 32% से 42% हो गया 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब विद इन बिटवीन द स्टेट्स, कि राजस्थान को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला इन स्टेट्स को अकॉर्डिंगली जो शेयर है वो डिवॉल्व किया जाएगा। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला। अब इसमें क्या है, 14 फाइनेंस कमीशन ने काफ़ी अच्छा चेंज लेके आया है कि 14 Finance Commission has proposed a new horizontal formula for distribution of state share in divisible pool among the states. इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें कि इन्होंने दो तीन चीज़ें नहीं इंक्लूड की है, नई मतलब न्यू चीज़ इंक्लूड की है, एंड कुछ चीज़ें ने एक्सक्लूड कर दी। अब देखते हैं हम क्या चेंज है। रिलेटिव टू 13 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू वेरिएबल्स, एक तो 2011 की पॉपुलेशन और एक फॉरेस्ट कवर, और इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया फिस्कल डिसिप्लिन वेरिएबल। तो आइए हम इसको इस टेबल से देखते हैं। पॉपुलेशन 1971 की वेटेज थी 25%, यहाँ वेटेज कम कर दी 17.5। पॉपुलेशन 2011 ये इंक्लूडेड ही नहीं था 13 फाइनेंस कमीशन में, तो ये एक नया वेरिएबल इंक्लूड किया गया है, इसकी 10% वेटेज है। फिस्कल कैपेसिटी की जो या फिस्कल इनकम की जो वेटेज थी ऑफ ईच स्टेट वो थी 47.5%, तो उनकी जितनी फिजिकल कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर डिवॉल्व होगा, तो ये बढ़ा दी गई है 50%। इसके बाद अगर हम देखें एरिया, तो वो 10%, एरिया का वेटेज यहाँ ज़्यादा कर दिया गया है 15%। फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट कवर वाली चीज़ पहले नहीं थी, ये 7.5% कर दिया है, तो ये भी एक नया वेरिएबल है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जिन स्टेट्स में है उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस होता है।
क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट कवर कट कर देंगे तो पहली बात तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट होगा, दूसरा फॉरेस्टेशन मेंटेन करने के लिए उनको लैंड नहीं मिल पाती। मतलब कि अगर वो फॉरेस्टेशन मेंटेन कर रहे हैं और उनको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि उनको लैंड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड उनको कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो जैसे हम देखें छत्तीसगढ़, झारखंड या जो भी फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसके लिए हम उनको कंपनसेट करना चाहते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट कवर का वेटेज जो है वो 7.5% कर दिया गया है। ये पहले इंक्लूडेड नहीं था। फिस्कल डिसिप्लिन अगर हम देखें तो पहले 17.5% वेटेज था, अब फिस्कल डिसिप्लिन वाली बात ख़त्म कर दी है। तो दो नए वेरिएबल्स आए हैं, वो है पॉपुलेशन 2011, तो इससे बिल्कुल करंट के हम स्टैटिस्टिक्स देख पाएंगे। और फॉरेस्ट कवर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इसको इंक्लूड किया गया है, बट फिस्कल डिसिप्लिन को हटा दिया गया है। तो ये चेंज है इन 14th फाइनेंस कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। 14th और 13th फाइनेंस कमीशन में किस तरह से चेंज किया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अगर हम देखें तो ये हमने देख ही लिया कि टैक्स डिवोल्यूशन जो है, एरिया, पॉपुलेशन 2011 जो है 2011 एंड 1971 की पॉपुलेशन देखी जाएगी, डेमोग्राफी, इनकम डिस्टेंस एंड फॉरेस्ट कवर। तो हाईएस्ट वेटेज किसको है? 50% दिया गया है फिस्कल कैपेसिटी या फिस्कल इनकम। फिर उसके बाद पॉपुलेशन 1971 को 17.5%, फिर डेमोग्राफी 2011 की पॉपुलेशन को 10%, एरिया को 15% एंड फॉरेस्ट कवर को 7.5%। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई। 13th फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर और 2011 की पॉपुलेशन नहीं थी। इसके बाद क्या रिकमेंडेशंस और दिए 14th फाइनेंस कमीशन ने? तो फिस्कल डेफिसिट, उन्होंने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये सेंटर के रिस्पेक्ट में बोला है कि फिस्कल डेफिसिट जो है शुड कम डाउन टू 3% ऑफ जीडीपी इन 2015-16 फ्रॉम 4.1% प्रोजेक्टेड इन 2014-15 एंड देन 3% इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब 2015-16 में 3.6, 2016-17 में 3% एंड केप्ट एट दैट फॉर 3 more years। मतलब कि 2016-17 से लेकर 2019-20 तक 3% ही रहना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोड मैप दो दिस प्रेजेंट टाइम फ्रेम एंड्स इन 2016-17। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा जितना डिफरेंट नहीं है जो कि 13th फाइनेंस कमीशन या जो हम प्रेजेंटली फॉलो कर रहे हैं। बस इसमें यह है कि 2000 इसमें जो डेट है, जो ईयर है, वो डिफरेंट है। वो 14th फाइनेंस कमीशन ये भी कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर देना चाहिए। इट शुड कम डाउन फ्रॉम 2.9 टू 2.56% इन फाइनेंशियल ईयर 2016 और फिर उसको प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना है 2.93% बाय 2019-20। तो आप इमेजिन कीजिए 2.9 से हमें रिड्यूस करना है 2.56 इन 2015-16 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 16 और प्रोग्रेसिवली फिर रिड्यूस करना है 2.93% बाय 2019-20। तो दीज आर द फिगर्स। 3.6% फिस्कल डेफिसिट का है, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 3% रखना है। 2.56 रेवेन्यू डेफिसिट का है और फिर उसको रखना है कंटिन्यूसली 0.93%। फिर हम देखते हैं सेंटर का डेट। सेंटर्स डेट में अगर हम देखें टू कम डाउन फ्रॉम 45.4% ऑफ जीडीपी टू 43% इन फाइनेंशियल ईयर 16 एंड देन उसको प्रोग्रेसिवली कम करना है टू 36.3% बाय फाइनेंशियल ईयर 20। देखिए आप ये हर चीज़ जो है 14th फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये 2015 से लेकर 2020 के लिए रिकमेंडेशंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेल टैरिफ अथॉरिटी। फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि हमें रिप्लेस करनी चाहिए एडवाइजरी बॉडी जो कि अभी रेल टैरिफ जो एडवाइस करती है हमें, उसको हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट करना चाहिए थ्रू नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू द रेलवे एक्ट। वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, तो वो बैक्ड बाय एन एक्ट या बैक्ड बाय लॉ होगी। अभी वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके रिकमेंडेशंस फॉलो हो या नहीं हो। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी गवर्नमेंट इन पावर है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को सिग्निफिकेंटली ऊपर रखती है, क्योंकि ये बॉडी सिर्फ एडवाइजरी है, एडवाइजरी बॉडी है, तो हो सकता है इसके रिकमेंडेशंस इतने एक्सेप्ट नहीं हो। फिर इसने एक रिकमेंडेशन दिया 14th फाइनेंस कमीशन ने कि एडवर्टाइजमेंट टैक्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट टैक्स 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि स्टेट शुड एम्पावर लोकल बॉडीज
टू इम्पोज एडवर्टाइजमेंट टैक्स कि अब हमें लोकल बॉडीज़ का के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि स्टेट्स को हम बोलें कि वो अपनी लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करे, ताकि लोकल बॉडीज़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगाए लोगों पर एंड दे कैन ऑगमेंट देयर रेवेन्यूज़। तो इससे लोकल बॉडीज़ जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के जो टैक्स रेवेन्यू है वो स्ट्रेंथन होंगे और इससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। बूस्ट फॉर स्टेट शेयर इन नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम देखें, कमीशन हैज़ रिकमेंडेड स्टेट शेयर 42% कर दिया है, 32% से 32% 13 फाइनेंस कमीशन ने करा था और ये लार्जेस्ट चेंज है एवर इन द परसेंटेज ऑफ डिवोल्यूशन। तो ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशनल रिकमेंडेशन था 14 फाइनेंस कमीशन का। तो आप देख सकते हैं स्टेट वाइज शेयर, ये है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कि आंध्र प्रदेश को 4.3%, अरुणाचल प्रदेश को 1.3%। अब ये किस बेसिस पे करा है? वो जो हमने 5 चीज़ें देखी थी, पॉपुलेशन ऑफ 1971, 2011, एरिया, फॉरेस्ट कवर एक्सेट्रा। आसाम को 3.31, आप देख सकते हैं झारखंड को 3.13%, तमिलनाडु को 4.023, राजस्थान को 5.495%। अब इन स्टेट्स को आप देखेंगे कि जनरली ज़्यादा दिया गया है। बिहार को 9.665, क्योंकि ये स्टेट्स बैकवर्ड स्टेट्स हैं, ये बीमारू स्टेट्स में आती हैं। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश को आप देखिए कितना ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इनकी ज़्यादा है। वो जो क्राइटेरिया था पॉपुलेशन 1971, पॉपुलेशन 2011, तो आप इन स्टेट्स में देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ओडिशा इसमें, बट आप अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को देखें तो इनमें काफ़ी कम है। तो ये उस क्राइटेरिया पर डिसाइड हुआ है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होगा। टैक्स डिवोल्यूशन बी प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि भाई टैक्स डिवोल्यूशन जो होगा सेंटर टू स्टेट्स, दैट शुड बी द प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, कि सेंटर से जो स्टेट्स को पैसा जाएगा, ये जो टैक्स डिवोल्यूशन हो रहा है ये होना चाहिए प्राइमरी रूट। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन कीपिंग इन माइंड स्पिरिट ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्योंकि अगर हम देखें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए वी एक्चुअली नीड टू डिवॉल्व एज मच रिसोर्सेज एज पॉसिबल टू स्टेट्स, एंड ये 42% ऑलरेडी हो गया है। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इसी को ही प्राइमरी रूट बनाओ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स। उसके बाद अगर हम देखें, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज़ बी बेस्ड ऑन 2011 पॉपुलेशन। तो कमीशन ने ये भी चीज़ रिकमेंड की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर लोकल बॉडीज़ यूजिंग 2011 पॉपुलेशन डेटा। क्योंकि अगर हम देखें कि 1971 वाला डेटा रखेंगे तो वो थोड़ा आउटडेटेड डेटा है। हमें अभी का जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसको करने के लिए हमें जो सेंसस 2011 हुआ है उसका डेटा लाना ज़रूरी है। और ग्रांट्स विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। अब जो लोकल बॉडीज़ को ग्रांट होंगे, जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ग्रांट्स होंगे, वो 2 कैटेगरी के बेसिस पर होंगे, एक तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, अ ग्रांट कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्राम पंचायत एंड अ ग्रांट कॉन्स्टिट्यूटिंग म्यूनसिपैलिटीज़। तो जो ग्रांट्स जो लोकल बॉडीज़ को दिए जाएंगे वो 2 कैटेगरीज में होंगे, एक ग्राम पंचायत के लिए ग्रांट होगा और एक म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए, ये रूरल एरिया के लिए। तो ये भी चीज़ 14 फाइनेंस कमीशन ने बोली। उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली कि ग्रांट्स टू बी इन 2 पार्ट्स, एक बेसिक एंड एक परफॉर्मेंस। क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन को लगा कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होने चाहिए, कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगी तो उनको अच्छे और ग्रांट्स मिलेंगे। तो पैनल ने रिकमेंड किया दैट द ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर लोकल बॉडीज बी इन 2 पार्ट्स, एक तो बेसिक ग्रांट, एक परफॉर्मेंस ग्रांट। रेशियो ऑफ बेसिक टू परफॉर्मेंस ग्रांट इज 90:10। मतलब बेसिक तो 90 है, परफॉर्मेंस 10 विथ रिस्पेक्ट टू पंचायत, और 80:20 होगा म्यूनसिपैलिटी में। बेसिक 80 एंड 20 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये उन्होंने बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट का क्लासिफिकेशन करा बोथ फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। पंचायत के केस में 90:10, म्यूनसिपैलिटी के केस में 80:10। तो अब हम देखते हैं ग्रांट्स टू ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो टोटल ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय कमीशन वॉज 2,87,436 करोड़ 5 साल के लिए, फ्रॉम अप्रैल 2015, ये 15 है, टू मार्च 31, 2020। ऑफ दिस इतना ग्रांट जो है वो जाएगा पंचायत को एंड इतना म्यूनसिपैलिटीज़ को। यू नीड नॉट रिमेंबर दीज फिगर्स, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट इतना होगा 90:10 पंचायत के लिए, 80:20 म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है।
इसके बाद अगर हम देखें स्टेट शेयर इन डिजास्टर रिलीफ शुड स्टे अनटच्ड। कमीशन ने कहा कि विथ रिगार्ड टू डिजास्टर रिलीफ परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स विल कंटिन्यू एज बिफोर, जो 13 फाइनेंस कमीशन में मेंशन था। तो ये लगभग 55,097 करोड़ आया। और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रिकमेंडेशंस ऑफ पैनल ऑन डिजास्टर रिलीफ वुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट होगी वो जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद होगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोली कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फॉर स्टेट्स। तो पैनल ने ये भी रिकमेंड किया कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो होंगे स्टेट्स के फॉर अ टोटल ऑफ 1,94,821 करोड़, ये उनको डिवॉल्व होगा फॉर मीटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्स, टैक्स डिवोल्यूशन एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये जो चीज़ है ये मेनली 11 स्टेट्स को दी जाएगी। और ये कौन सी 11 स्टेट्स हैं? ये 11 स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि अपने रेवेन्यू डेफिसिट को मीट नहीं कर पाती, बिकॉज दे आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या वो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इसीलिए कुछ चैलेंजेस हैं उन स्टेट्स में, इसीलिए इन 11 स्टेट्स के लिए स्पेशल कंसिडरेशन रखा गया है। इन 11 स्टेट्स को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये आंध्रा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये ग्रांट इन एड फॉर रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स है। इसके बाद अगर हम देखें सम सेंट्रल स्कीम्स भी डी लिंक्ड। अब फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा कि 8 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनको डी लिंक करो फ्रॉम सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विल नाउ सी अ चेंज इन शेयरिंग पैटर्न। ये हमने देखा भी है, जब 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को डी लिंक किया है फ्रॉम सपोर्ट ऑफ सेंटर। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का ये शेयरिंग पैटर्न जो है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, इसको भी चेंज किया गया है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, जीएसटी के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप के लिए, प्राइसिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके लिए भी रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो अब हम देखते हैं क्या इम्प्लीकेशंस है 14 फाइनेंस कमीशन के। इसके बाद हम लास्ट चीज़ देखेंगे वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड जनरल कैटेगरी स्टेट्स। एंड इसके बाद हम देखेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, जस्ट एग्जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू रेवेन्यू टैक्सेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन और ये सारे फाइनेंस कमीशन जो इंडिया में अभी तक बने हैं। तो आइए हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। So let's study the implications of 14 Finance Commission. With greater fiscal space, there has been a 10% increase in state share of shareable central taxes. तो ये हमने देखा ही कि 10% इंक्रीज हुआ है, 32% से 42% हो गया है। तो स्टेट्स नाउ कैन मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर रीजन्स, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, देयर बाय एडिंग द एग्रीगेट ग्रोथ ऑफ नेशन। अगर स्टेट्स ग्रो करेंगी तभी नेशन ग्रो करेगा। ह्यूज टैक्स डिवोल्यूशन जो है वो कुड पुट सम स्ट्रेन ऑन सेंटर्स फाइनेंसेस। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि सेंटर के फाइनेंसेस पर स्ट्रेन हो। एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सेंटर की फाइनेंशियल फिस्कल स्पेस जो है वो सिक्योर रहे, सजेशन इज दैट देयर विल बी commensurate reduction in central assistance to states, जिसको कि हम प्लान ट्रांसफर्स कहते हैं। तो अगर हमने 32 से 42% यहाँ कर दिया है तो जो सेंटर का असिस्टेंस होता है, सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स या प्लान ट्रांसफर्स जिनको हम कहते हैं, उनको सेंटर जो है वो रिड्यूस कर देगा। विथ रिगार्ड टू न्यू हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला जिसमें हमने देखा फॉरेस्ट कवर पॉपुलेशन 2011 को इंक्लूड किया गया है। ऑल स्टेट्स स्टैंड टू गेन फ्रॉम 14 फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स इन एब्सोल्यूट टर्म। तो अगर हम देखें टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट्स, द इंक्रीज शुड बी स्केल्ड बाय पॉपुलेशन, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट मार्केट प्राइस और बाय स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो न्यू हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला जो प्रपोज किया है इसमें पॉपुलेशन 2011 सबकी इंक्लूड करी गई है,
है और पॉपुलेशन 2011 को जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो सिग्निफिकेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सारी स्टेट्स को ही गेन होगा, मगर जो वीकर स्टेट्स हैं या जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बिगेस्ट गेनर्स कौन होंगी अंडर जनरल कैटेगरी स्टेट्स में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल अगेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन बेनिफिट करेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। अ बेटर मेजर ऑफ इम्पैक्ट इज बेनिफिट पर कैपिटा। मेजर गेनर्स पर कैपिटा टर्म्स में कौन होगा, वो केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन जनरल कैटेगरी स्टेट्स, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम होंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। इसके बाद अगर हम देखें 14 फाइनेंस कमीशन ने 13 फाइनेंस कमीशन के आइडिया को रीइंफोर्स किया है, और वो आइडिया क्या है कि हमें रिड्यूस करना है या अल्टीमेटली हमें एलिमिनेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हमें ग्रेजुअली जीरो लेके आना है। आपने देखा था 14 फाइनेंस कमीशन का टारगेट था कि 0.93% तक आ जाना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट बाय 2019-2020. That in essence could mean that 13th Finance Commission was failed in this case, or that government has not been able to raise its revenue efficiently. तो ये कहने का मतलब ये है कि 13th Finance Commission although recommendation सेम ही थी कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, बट अगर हम देखें कि 13th Finance Commission की जो रिकमेंडेशन थी उसको गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इतना डिक्रीज नहीं हो पाया था। इंडिया का हाई फिस्कल डेफिसिट इज क्लियरली पिक्चर्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को 3% तक हमें रिड्यूस करना है, और इसी तरह की रिकमेंडेशन थी 13th फाइनेंस कमीशन के भी। अब हम देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अगर हम देखें तो पहली बात तो कौन सी 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। 3 स्टेट्स आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इनको पहले ग्रांट किया गया था स्टेटस। उसके बाद 8 स्टेट्स को और इंक्लूड कर लिया गया था, वो है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो अगर हम देखें 8 तो है टोटल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस सिक्किम, तो टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। और उसके अलावा 3 कौन सी है, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब इनको किस बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की तरह रखा गया है, इनका जो क्राइटेरिया है वो है या तो हिली या डिफिकल्ट टेरेन। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में ये है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी या साइजेबल शेयर ट्राइबल पॉपुलेशन का होना चाहिए जैसा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन होनी चाहिए अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, ये भी आप 11 इनमें देख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड 11 स्टेट्स में देख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ये भी हम देख सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली भी जनरली ये बैकवर्ड है बाकी स्टेट से। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये भी यहाँ इतने नहीं हैं। और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उनका जो एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है वो इतना वायबल नहीं है। तो इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देने का यही रीज़न है क्योंकि इनके कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जिससे कि उनका रिसोर्स बेस कम है और वो इतने मोबिलाइज नहीं कर सकती रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको स्पेशल असिस्टेंस देता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो अब हम देखते हैं किस तरह से फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होता है। एक तो दोस्त दैट आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, और कुछ होते हैं दैट आर टू इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जैसे कि जो गवर्नमेंट है अभी सेंटर पे, उसने बोला कि चलो FRBM को अमेंड करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, तो हम NK सिंह कमेटी बना रहे हैं जो कि देखेगा कि इस डेफिसिट को कैसे कम किया जाए, इस FRBM एक्ट को कैसे अमेंड किया जाए। तो NK सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि किस तरह से FRBM एक्ट को हम अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो एक तो आर्टिकल 268 है जो कि ड्यूटीज लिविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। फिर 269 है टैक्सेस लिवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट ये स्टेट्स को असाइन कर देता है। 270 में टैक्सेस लिवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन मगर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बोथ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 271 में आता है सरचार्ज
ऑन सर्टेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ये यूनियन लेता है। और 274 में आता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में तो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। फिर 275 में क्या होता है, ये है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। तो जो ग्रांट्स इन एड फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स होती है, इसका प्रिंसिपल गवर्न करने के लिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस दी जाती है। आर्टिकल 280 में हमने देखा फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन्ड है, एंड आर्टिकल 281 में रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन्ड है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि टैक्स, फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स, ये सारी चीज़ें इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आती है। अब हम लास्ट चीज़ देखते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट विल विद इन 1 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें क्या है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम लोकल बॉडीज़ लेके आए, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। तो उसके बाद से एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी हमने एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होगा। वो क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, और वो रिकमेंडेशन किसको देगा, वो गवर्नर को देगा। सेंटर में किसको दे रहा था, प्रेसिडेंट को। तो अब ये इसके फंक्शंस क्या होंगे, एक तो ये प्रिंसिपल्स डिसाइड करेगा विच विल गवर्न डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, जो कि स्टेट लिवी करेगी, बट वो डिवाइड करेगी पंचायत से, मतलब वो शेयर करेगी पंचायत को। तो एलोकेशन बिटवीन द पंचायत एट ऑल लेवल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, क्योंकि जो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो पंचायत से भी आ रहा होगा, तो पंचायत को स्टेट जो है वो एलोकेट करेगी बिटवीन द पंचायत, वो किस प्रिंसिपल पर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स एंड फीस जो भी स्टेट कलेक्ट कर रही है, तो वो पंचायत को किस प्रिंसिपल पर एलोकेट करेगी, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स, फीस विच मे बी असाइंड और अप्रोप्रिएटेड बाय पंचायत, ये भी स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। ग्रांट्स इन एड जो किसी पंचायत को दिए जाएंगे, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है। फिर मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। और इसके अलावा कोई और मैटर रिफर्ड टू फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नर इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ पंचायत, तो ये भी जैसे हमने देखा था कि सेंटर में एनी मैटर रिफर्ड टू फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे स्टेट में एनी मैटर रिफर्ड टू स्टेट फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नर इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ पंचायत। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 243 वाई, ये एक फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि फाइनेंस कमीशन होगा हर स्टेट में। आर्टिकल 243 आई शैल मेक सिमिलर रिकमेंडेशंस विज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, तो ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचायत से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस देगा। गवर्नर इज़ रिक्वायर्ड टू कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडा टू एज टू एन एक्शन टेकन देयर ऑन टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंटर में जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट में रखता है, प्लस उसके साथ वो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडा भी रखता है कि किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। इसी तरह से जो स्टेट में है एवरी रिकमेंडेशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा वो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में रखा जाएगा बाय गवर्नर। ये हमने ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी सारे अभी तक 13 फाइनेंस कमीशन बने हैं, आप देख सकते हैं हर 5 साल में फाइनेंस कमीशंस बने हैं इंडिया में। 2007 से लेकर 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बट ये ऑपरेशनल ईयर जो था वो 2010 से 15 था। ये विजय केलकर थे 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। 14 के हमने देखे वो 2013 में उनको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड उनका ईयर ऑफ ऑपरेशन था 2015 से 2020। तो ये हमने सारे फाइनेंस कमीशन डिस्कस किए। हमने फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस किए, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिकमेंडेशंस ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन को हमने डिस्कस किया, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के। फिर हमने लास्ट में अभी तक के सारे फाइनेंस कमीशन को देखा। थैंक यू।